Good morning students. We for the 12th class we were reading chapter number 2, that is the anime, which is composed by Pearl S. Buck. Okay, and we had read about Dr. Sadao Hoki, who was a best Japanese surgeon and a scientist, and his wife Hana, who was also a very sensitive lady, and first he thought that she was American and she denied to marry her, but then after when he found that she was a Japanese girl, then he decided to marry Hana with Japanese traditions. And his father was also, Sadao's father was also agree for this thing. Now then they were actually standing in the balcony of their house, and they saw that a man and a strange man, he came and he just fall down on the beach, and they decided that they should find out the personality, that who actually the man was. So they moved towards him, and then they found that the man was an American soldier. He was an American soldier with yellow hair. So they decided that obviously Japanese and the Americans, they were enemy of each other. So they decided to put that man again in the ocean. But actually Hana, his wife, also agreed to that okay, they would put that man again in the ocean. But actually both of them were very kind personalities. They thought that if they would hand over the American soldier to the government, then then the man must die, because the government would never allowed him to escape. Okay, so the best thing is that to put him in the ocean. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hana said, but neither of them moved. तो दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा है, बस बोल ही रहे हैं कि इसको हम सी में डाल देते हैं. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure, और उसको घूर रहे हैं, और उससे एक्चुअली थोड़ी बहुत मतलब जो अमेरिकन सोल्जर है उसका रिपल्सिव मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट जाना या किसी से दूर जाना. तो ऑब्वियसली अमेरिकन होने के नाते उनको भी थोड़ा मतलब बहुत ये हो रहा है कि हमारा एनिमी है, तो उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं. What is he? Hana whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. तो उसने बोला कि ये है कौन एक्चुअली में. तो हना विस्पर करती हैं, तो सदाओ कहता है ऑब्वियसली ये एक अमेरिकन है, और जब उसकी कैप पे देखते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कैप पर भी अमेरिकन के सिंबल्स होते हैं. यस, दे आर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लैटरिंग, अ सेलर ही सेड. उसने कहा ये तो एक सेलर है, यानी कि अमेरिकन सेलर है. मे बी ये फाइट के दौरान जो है इंजर्ड होकर इधर आ चुका है. फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, तो अमेरिकन वॉरशिप से ये क्या हो रहा है, फाइट कर रहा होगा, नेवी में होगा, फाइट कर रहा होगा, और ये इंजर्ड होकर सी के थ्रू यहाँ पर बीच पे आ चुका है. He spelled it out, US Navy. तो उसके कैप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, US Navy. तो उसे कंफर्म हो जाता है कि दैट द मैन वॉज अमेरिकन. The man was a prisoner of war. He has escaped. तो हो सकता है ये वॉर का प्रिजनर हो, यानी हो सकता है इसे पकड़ भी लिया गया हो और ये वहाँ से भागकर इधर आ चुका है. हना क्राइड सॉफ्टली एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड. और हना ने धीरे से बोला कि हाँ इसीलिए ये वुंडेड है, इसे चोट लगी हुई है. इन द बैक सदाओ अग्रीड. सदाओ ने कहा बिल्कुल सही बात है, ये पकड़ा गया होगा और फिर ये भाग गया होगा, एस्केप किया होगा इसने वहाँ से, तो इसको गोली लगा दी, गोली मार दी गई थी, इसीलिए ये वुंडेड है. They hesitated looking at each other. Then Hana said with a resolution. तो वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए. फिर हना ने एक समाधान निकालते हुए बोला, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी. उन्होंने बोला चलो हम इसे वापस से सी में ही डाल देते हैं. इफ़ आई एम एबल आर यू. उसने कहा ठीक है. सदाओ आज तो सदाओ ने बोला ठीक है मैं तो रेडी हूँ. हना क्या तुम रेडी हो? नो, हना सेड. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन. तो उसने कहा कि नहीं मैं तो रेडी नहीं हूँ, अगर तुम अकेला करना चाहो तो आप इसे अकेला कर सकते हो ये काम. सदाओ हेजिटेटेड अगेन. अब सदाओ भी फिर से घबरा रहा है. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty.
तो सदाव हेजिटेट हो रहा है और वो बोल रहा है कि सबसे अजीब विचित्र बात ये है कि मैं इस मैन को एक्चुअली पुलिस को बिना किसी डिफ़िकल्टी को भी दे सकता हूँ। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं किसी भी चीज़ की इसकी केयर नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा एनिमी है। ही इज़ माई एनिमी, ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, और सारे ही अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फैलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो इसका फेस भी कितना फुलिश है। बट सीन्स ही इज़ वूंडेड, लेकिन ये घायल है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, मैं चाहे इसे बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरा एनिमी है, मैं इसका कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वूंडेड है इसलिए इसे वापस सी में भी वापस नहीं फेंका जा सकता है। हनान ने बोला कि ये वुंडेड है, इसको घायल है, तो वापस सी में भी कैसे हम इसे छोड़ दें। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, बट द सर्वेंट्स सदाव इंक्वायर्ड। सो एक ही चीज़ है कि हम इसको अपने घर ले जाते हैं, लेकिन हमारे सर्वेंट्स का क्या करेंगे, वो इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे एक अमेरिकन सोल्जर को, वो तो कभी भी इसकी सर्विसेज नहीं करेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव देम टू द पुलिस, तो हम उनको ये बोलेंगे कि हम इस सोल्जर को पुलिस को देना चाहते हैं। एज इंडीड वी मस्ट, तो हम ऐसा ही करेंगे। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, तो अब हना बोल रही है कि हमें आपकी जो पोजिशन है, दैट यू आर अ वेरी सक्सेसफुल सर्जन, तो आपकी पोजिशन के बारे में भी, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में, सबके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इस अमेरिकन को घर ले जाने से पहले सोचनी होगी। It would danger all of us if we did not give this man over as a prisoner of a war. So अगर हमने इसको गवर्नमेंट को नहीं सौंपा तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक मुसीबत बन जाएगा। Certainly, सदाव एग्री, तो सदाव ने भी बोला श्योरली, बिल्कुल हम इसे गवर्नमेंट को दे देंगे। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मुझे तो मैं कुछ और सोच भी नहीं रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसे वापस किसको दे देंगे, इसे गवर्नमेंट को ही दे देंगे। Okay, so this is it, and we'll continue with the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.